welcome in today's class. Today we are going to start a new topic of chapter number 3, our changing earth, that is major landform. Now basically talking about landform, what is a landform? So we can define it as the various structures which we see on the earth surface, they are called landforms. So plains, hills, mountains, plateaus, desert, all these things are basically called landforms. Now talking about our landscape. Landscape is the same thing. So our landscape keeps changing continuously. Means every time it keeps on changing. So two major forces or things which changes our landform or landscape is, number one, weathering, and number two, erosion. Now first we will talk about weathering. Now what is weathering? We can simply call weathering is the breaking down of rocks on the surface of earth. Means breaking down of rocks on the surface of earth. So basically वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स जो बड़े रॉक्स होते हैं उनका छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना या टूटना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. एंड इरोजन, it can be defined as the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. See, weathering और erosion में मेजर डिफरेंस यही होता है. weathering जो होता है वो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना होता है छोटे पीसेस में, और इरोजन जो होता है वो अर्थ के सरफेस का वियरिंग डाउन होता है. वियरिंग डाउन मीन्स उसका हटना. जैसे आप यू हैव बीन नोटिस्ड ड्यूरिंग द समर्स when winds blow very fast, you can see that the soil also blows with it. Okay, गर्मी के दिनों में जब हवा बहुत तेज चलती है तो आप देखते हो कि उसके साथ धूल भी उड़ता है. बारिश बहुत तेज होती है, पानी बहुत तेज बहता है तो उसके साथ मिट्टी भी कटने लगती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इरोजन, वियरिंग अवे. इरोजन इज wearing away of earth surface by agents such as air, water and ice. तो वेयरिंग और इरोजन का मेजर डिफरेंस है. वेदरिंग और इरोजन का मेजर डिफरेंस यही होता है. वेदरिंग जो होता है वो बड़े रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, और इरोजन का मतलब होता है अर्थ के सरफेस का वियर अप होना. वियर अप होना मीन्स एयर, वाटर और आइस के थ्रू अर्थ का टॉप लेयर जो होता है उसको कटान. ठीक है. नाउ this process of erosion and weathering create different landforms. It means these two processes create different landforms, and in today's class we are going to study about the work of different agents on the earth's surface. The first will be work of a river, that how a river forms different landscapes or different landform on earth surface. So the first one is work of a
river. In this topic we will study about the work of river and how a river helps in creating different landforms or landscape on earth surface. So number one in this topic we will study waterfall. Now how does the waterfall forms? See, the running water of a river erodes the landscape when the running water tumbles means तेजी से बहना है. When the running water tumbles down a hill slope, okay, or a steep angle over very hard rock or down a steep valley. Basically जो rivers का origin होता है, if we talk about the rivers of North India, all these rivers are glacier fed. Glacier fed means इन रिवर्स को जो पानी होता है वो ग्लेशियर से मिलता है, ग्लेशियर के पिघलने से. एंड दीज आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर मीन्स इनको साल भर ग्लेशियर से पानी मिलते रहता है. तो ग्लेशियर्स आर बेसिकली वी ऑल नो दैट ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन माउंटेन रेंजेस. सो व्हेन अ रिवर फ्लोज थ्रू द माउंटेन द एंगल और द स्लोप इज वेरी स्टीप. एंगल बहुत ज़्यादा होता है तो जो रिवर का वाटर होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बहता है. द रिवर वाटर फ्लोज वेरी फास्ट एंड व्हेन दैट वाटर फ्लोज डाउन टू एनी हिल साइड दैट फॉर्म्स अ waterfall. Now suppose this is the region and the water is flowing. Water surface. Waterfall. So when the water flows very fast down to a steep slope, okay, it forms a waterfall. Now if we talk about the different waterfalls, the highest waterfall in the world is the Angeles Falls, which is in Venezuela in साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अगर वाटरफॉल्स की बात करें तो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में जिसका नाम है एंजल्स फॉल्स. देन देयर इज नाइग्रा फॉल्स इन इंडिया. देयर आर many waterfalls in South India and in the Central India also. Jog Fall in Karnataka, then Garsoppa Falls and many more are there. Now when this thing, okay, the water flows away from the hilly area and when it enters in the plain, when it enter in the plain means जब वो प्लेन एरिया में एंटर करता है तो प्लेन एरिया का एंगल या स्लोप जो होता है वो बहुत कम होता है. द स्लोप और द एंगल ऑफ अ प्लेन एरिया इज वेरी लो. सो द रिवर और द वाटर ऑफ द रिवर दे twist and turn forming large bend known as meander. Okay, suppose this is a river in a plain area. Okay, so जब ये रिवर प्लेन्स में आता है तो एंगल बहुत कम हो जाता है इनके फ्लो का. सो पानी बहुत धीरे धीरे आता है तो वो एक कर्ल या ट्विस्ट बनाते हुए आता है. तो ये जो एरिया होता है this one is called meander and this one is called meander. तो जब रिवर के वाटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है तो वो ऐसे ट्विस्ट करते हुए प्लेन्स में एंटर करता है और ये जो एरिया होता है यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, देन यहाँ पर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मींडर. नाउ अब ये अपने साथ साथ माउंटेन या फिर हिली रीजन से बहुत ज़्यादा जो है
eroded material. Okay, they carry a huge amount of eroded material from the hilly region and they start settling down it in the plain area. तो क्या होता है कि जब वो इरोडेड मटेरियल को सेटल करते जाते हैं प्लेन रीजन में, तो ये जो साइड होता है ये धीरे धीरे पतला होते जाता है और इंस्टेंटली ये कट करके एक ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है. ओके, ये ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है और ये हिस्सा नदी से साइड छूट जाता है. इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. ओके, सो दिस पार्ट ऑफ द रिवर विच कट्स अवे फ्रॉम द मेन रिवर इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. आपको एक बहुत ही लोकल सा एग्जाम्पल देता हूँ ऑक्सबो लेक का. यू हैव सीन द रामगढ़ ताल इन गोरखपुर. हमारे गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है, इट इज ऑल्सो अ ऑक्सबो लेक. इट वॉज पार्ट ऑफ राप्ती रिवर इन वेरी अर्ली स्टेज. बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले की बात है. तो वो राप्ती नदी से कट के अलग हुआ पार्ट है और एक ऑक्सबो लेक है हमारा रामगढ़ ताल. नाउ उसके बाद क्या होता है, जब ये रिवर प्लेन में ही रहता है तो बारिश के पानी से या फिर बहुत ज़्यादा पानी जब रिवर में आ जाता है तो बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ बहुत सारा कचरा जो है बह के, बहुत सारी मिट्टी जो है हिली एरिया से बह करके आती है. तो रिवर का पानी जब स्पीड स्लो होता है तो वो मिट्टी जो है या और जो कचरा है वो रिवर के बैंक्स पे, रिवर के किनारे किनारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन. ओके, मीन्स प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द फ्लड वाटर ऑफ अ रिवर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लेवीज. नाउ व्हाट इज लेवीज? आप में से बहुत सारे लोगों ने राप्ती नदी देखा होगा. ओके, ड्यूरिंग द समर सीजन में जब बारिश नहीं हो रही होती है तो आप देखते हैं राप्ती नदी बहुत नीचे बहती है और साइड साइड में बहुत ऊंचाई पर मिट्टी के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं. तो वो जब बाढ़ का पानी कम होता है, व्हेन द फ्लड वाटर गेट्स डाउन इट्स लेवल, जब फ्लड वाटर का लेवल डाउन होता है तो मिट्टी वगैरह जो इकट्ठा हो जाती है वो एक हाई स्ट्रक्चर बना देता है और नदी उसके नीचे बहुत बहने लगती है. तो दैट थिंग इज कॉल्ड लेवीज. ओके, दैट थिंग इज कॉल्ड लेवीज. आप फिर देखोगे अभी तो राप्ती का पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, बट एक दो महीने में, ओके, इन 1 or 2 month जब वो पानी नीचे बैठेगा तो आप देखोगे कि राप्ती के साइड साइड में बहुत ऊंचे ऊंचे उसके बैंक्स हैं. तो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लेवीज. नाउ दिस वाज द वर्क ऑफ अ रिवर. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज डेल्टा. बेसिकली डेल्टा जो वर्ड है वो हमारे एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है. दिस इज कॉल्ड डेल्टा. ये एक ग्रीक सिंबल है. सो डेल्टा क्या होता है, जब प्लेन से होते हुए रिवर ओशन की तरफ बढ़ती है. ओके, व्हेन द रिवर गेट्स क्लोज टू द ओशन, तो जो सरफेस या जो स्लोप होता है वो बहुत कम हो जाता है और एंगल जो होता है, जो स्लोप होता है वो इतना कम हो जाता है कि जो नदी होती है, जो रिवर होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जब एक ही नदी से बहुत सारी स्ट्रीम्स अलग अलग हो जाती हैं. सपोज दिस इज द रिवर. अब इसमें से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई. ओके, इसमें से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल गई. ये होती है डिस्ट्रीब्यूटरी. और ट्रिब्यूटरी क्या चीज़ होता है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रिब्यूटरी होती हैं छोटी छोटी रिवर्स जो आके एक बड़ी रिवर में मिलती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, जब
रिवर ओशन या सी के करीब पहुंचता है, जब स्लोप बहुत कम हो जाता है तो कई सारी स्ट्रीम्स अलग हो जाती हैं मेजर रिवर से, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो स्लोप इतना कम हो जाता है कि नदी का पानी बहुत धीरे धीरे बहता है। ओके, द रिवर वाटर फ्लोज वेरी स्लो एंड इट फॉर्म्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो दिस रीजन is called delta. Okay, delta is a structure formed just before the river pours its water in ocean or bay or any sea. So we will pause this class over here. Work of river we have done. Now 3 topics are remaining: work of sea wave, work of ice and work of wind. I will try to finish these topics in the next week. So that's it for today. Today we have discussed what is landform and the agents or the activity through which the landform or landscape changes. That was weathering, and number 2 was erosion. The next thing was work of river. In this we have studied waterfall, meander, oxbow lake, floodplain, levees, and the last was delta. So these topics we have covered in today's class. In next week I will try my 100% to finish this chapter. So that's it for today. Thank you very much. Have a nice day.